Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video I will teach you Hindi to English translation. So guys, this video is very important for you because if you want to improve your English, so you have to watch this video till the end. Because this video will definitely help you to improve your English. In this video I will teach you Hindi to English translation, how you can convert Hindi sentences in English sentences. Okay, so in this video I will teach you how you can make Hindi to English translation, and these sentences, okay, whatever sentences I will teach in this video, I have shared with you in this video, I will share in this video. So this translation you can use in your daily life conversation for improving your English. If you want to improve your English, so these translation, these sentences you can use in your daily life conversation, so that you can use, so that you can remember it for a long time, and you can improve your English with the help of these sentences, these translations. So guys, watch this video till the end without skip, then you will able to understand what I will teach in this video and what I have said. Okay, and guys, don't forget like, share and subscribe, because whenever I upload my new video, so you can get the notification of my video. Okay guys, so let's get start. Okay, so today's session is the Hindi to English translation session. So Hindi to English translation session I will teach you, because this session will help you to improve your English. To improve, you can improve English through this video. Okay, so let's get start. First, as you can see that on your screen here, that first sentences is here, पीछे मत हटना. Okay, in English we can say that in this way, don't back out now. पीछे मत हटना, don't back out now. And next sentences is here that you can use, please guys, use these sentence in your daily life conversation. These sentences will definitely help you to improve your English, so use each and every day these sentences in your daily life conversation, so that you can use and you can remember it for a long time. Okay, so next is here that you can see that हाँ मुझे ऐसा लगता है. अगर आप हिंदी में बोलते हैं हाँ मुझे ऐसा लगता है, आप इंग्लिश में कह सकते हैं yes I think so. Yeah, in English you can say that yes I think so. And next is that नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता. अगर हिंदी में आप बोलते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, अगर आप फिर उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं नो आई डोंट थिंक सो. नो आई डोंट थिंक सो. एंड नेक्स्ट इज दैट अब मुकरना मत. अगर आप किसी को बोलते हैं अब मुकरना मत, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन इंग्लिश यू कैन से इन दिस वे, डोंट बैकआउट नाउ, डोंट बैकआउट नाउ. ओके, नेक्स्ट इज दैट क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? इन इंग्लिश यू कैन से दैट डोंट यू थिंक सो, डोंट यू थिंक सो. एंड नेक्स्ट इज दैट तुम क्या ढूंढ रहे हो? अगर आप हिंदी में बोलते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, ये सब ऐसे सेंटेंसेस है जो हम डेली बेसिस पे अपने इन लाइफ कॉन्वर्सेशन में डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर आप किसी को बोलते हो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. तुम क्या ढूंढ रहे हो की जगह आप यूज़ कीजिए व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट पालथी मार कर बैठ जाओ. अगर आप किसी को बोलते हैं अच्छे से पालथी मार के बैठ जाओ, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसे? यू कैन से दैट इन इंग्लिश इन दिस वे दैट सिट क्रॉस लेग्ड, सिट क्रॉस लेग्ड. ओके, पालथी मार कर बैठ जाओ, सिट क्रॉस लेग्ड. एंड नेक्स्ट इज दैट मुझे अपने आप पर भरोसा है. अगर आप किसी को बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में? इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आई बिलीव इन माई सेल्फ. ओके, यू कैन से दैट इन दिस वे इन इंग्लिश, आई बिलीव इन माई सेल्फ. इफ यू वॉन्ट टू से दैट इन इंग्लिश यू कैन से दैट इन दिस वे. ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट जो मन करे वो करो. किसी को अपन कभी गुस्से में बोल देते हैं जो मन करो, जो मन कर रहा है वही करो. ओके, सो इन इंग्लिश यू कैन से दैट इन दिस वे डू वट एवर यू फील लाइक. ओके, डू वट एवर यू फील लाइक, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जो इच्छा है वही करो. तो आप ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में डू वट एवर यू फील लाइक. ओके,
एंड नेक्स्ट इज दैट तुम्हें जो सोचना है सोचो। ओके, अगर अपन किसी को बोलते हैं तुम्हें जो सोचना है सोचो, तो आप इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं थिंक वट एवर यू वॉन्ट, थिंक वट एवर यू वॉन्ट। ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट धूल झाड़ दो। ओके, अगर आप हिंदी में इफ़ यू से इन हिंदी दैट धूल झाड़ दो, in English you can say that, if you want to in English you can say that in this way, wipe up the dust, wipe up. Okay guys, vocabulary is also important. Okay, so wipe up the dust. And next is that वहाँ क्या क्या हुआ, in English you can say that what all happened there. Okay, अगर आप बोलते हैं वहाँ क्या क्या हुआ, तो आप in English you can say that in this way, what all happened there. And next is that मैंने डर के मारे झूठ बोला। ओके, अगर आप बोलते हैं हिंदी में कि मैंने डर के मारे झूठ बोला, यू कैन से दैट इन इंग्लिश, आई लाइड ड्यू टू फियर। ओके, आई लाइड ड्यू टू फियर। एंड नेक्स्ट इज दैट तुम तो पैदा से झूठे हो। ओके, अगर आप किसी को बोलते हैं कि तुम तो पैदा से झूठे हो, सो इन इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यू आर बोर्न लायर। ओके, यू आर बोर्न लायर, इट मीन्स तुम तो पैदा से झूठे हो, यू आर बोर्न लायर। एंड नेक्स्ट इज दैट मैंने डर के मारे झूठ बोला, आई लाइड ड्यू टू फियर। एंड नेक्स्ट इज दैट मुझे पागल मत बनाओ। अगर आप किसी को बोलते हैं गुस्से में रहने तो मुझे पागल मत बनाओ तुम, तो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, डोंट मेक मी फूल। ओके, डोंट मेक मी फूल, इट मीन्स मुझे पागल मत बनाओ। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टुडे सेशन इज एंड हियर, विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू सेशन गाइस। Till then, bye bye, take care, and don't forget, guys, like, share, and subscribe. Thank you for watching.